پہلی تاریخ کی سیاہی نسلوں کا مستقبل لکھنے میں استعمال ہوتی ہے۔ بوسیدہ عمارتیں، بنجر میدان، قدیم اثاثے اور تباہ شہر ہمیں ہمارے عظیم ورثے کی یاد دلواتے ہیں۔ یہ ویرانیاں وقت کے ساتھ حسن کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ ایسا ہی مقام جو عظیم تہذیب کا خزینہ اور آثار قدیمہ کا نگینہ ہے، یہ ہے ٹیکشاسیلا، جس کا موجودہ نام ٹیکسلا ہے، سنگ تراشوں کا شہر۔ صدیوں کی دھول میں لپٹے ماہوسار، قدیم مذاہب کا جاہو جلال، انمول تہذیب کا حسن و جمال اور فنی نمونوں سے مالا مال، ٹیکشاسیلا سرزمین عظیم الشان قندھارا کی آغوش میں واقع ہے۔ چنانچہ آج بھی یہاں قندھارا تہذیب کے مجسمے، باقاعدہ منصوبے سے تعمیر کیا گیا شہر، گلیاں، مکانات اور کھنڈرات محفوظ حالت میں موجود ہیں۔ 1980 میں ٹیکسلا ورلڈ ہیریٹیج سائٹ پر یونیسکو کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ ٹیکشاسیلا میں دوسری صدی قبل مسیح سے 5ویں صدی عیسوی تک 3 قدیم شہروں کے آثار ملے ہیں، جن کے نام بھیرماؤں، سرکپ اور سرسک ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ٹیکسلا ہمیشہ فاتحین کی توجہ کا مرکز رہا ہے، جس کی بڑی مثال 327 قبل مسیح میں یہاں سکندر اعظم کی آمد تھی۔ وقت کے ساتھ ٹیکشاسیلا عروج و زوال کے سفر سے گزرتا رہا۔ یہ موریہ خاندان کے قبضے میں بھی آیا اور شہنشاہ اشوکا کے عہد سے بھی گزرا۔ اسی دور میں یہ تعلیم، ترقی اور تجارت کا مرکز بنا۔ یہاں کے کھنڈرات میں ٹیکشاسیلا کے پہلے دارالحکومت بھیرماؤں، دوسرا شہر سرکپ، تیسرا شہر سرسک، چنڈیال اور پپلاں کے متبرک مقامات، موڑا مرادو اور جولیاں کی عبادت گاہیں ہیں۔ درما راجیکا، بلر اور کنالا کے سٹوپا شامل ہیں۔ ٹیکشاسیلا کے ابتدائی دور کے مقامات 2 ہیں، سرائے کھولا اور ہتھیار۔ یہ دونوں مقامات پروٹو ہسٹورک دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ بھیرماؤں شہر کو ٹیکشاسیلا کا پہلا دارالحکومت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جس کا دور 6 قبل مسیح سے 2 صدی قبل مسیح تک ہے۔ یہ شہر 800 سال قبل مسیح پرانا ہے۔ بے ترتیب پتھروں سے تعمیر کیے گئے مکانات اور بے ترتیب تنگ گلیوں کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ مکان کی دیواریں موٹی اور چھتیں لکڑی کی بنی تھیں۔ ٹیکشاسیلا کے کھنڈرات میں سرکپ شہر خاص توجہ کا مرکز ہے، جو کہ 2 صدی عیسوی میں یونانیوں کے دور میں بنایا گیا تھا۔ اس کا نام لوک داستانوں کے ایک کردار راجہ رسالو اور 7 شیطانوں کے نام پر رکھا گیا۔ یہاں پر پائے جانے والے آثار یونانی، سیتھی اور پارتھین عہد کی واضح عکاسی کرتے ہیں۔ سرکپ تنگ گلیوں میں تقسیم تھا اور اسے 4 دیواری کے ذریعے تحفظ دیا گیا تھا۔ مکانات کی تعمیر ایسی تھی کہ باہر سے یک منزلہ نظر آنے والے مکانات دراصل 2 منزلہ تھے۔ اسے زلزلے سے بچانے کے لیے چھوٹے اور بڑے پتھروں کا مکسچر استعمال کیا گیا۔ شہر کی مرکزی شاہراہ کے دونوں اطراف پر کمرشل بلڈنگز اور ان کے پیچھے گھر موجود تھے۔ گھروں کے داخلی راستے چھوٹی گلیوں سے
जबकि दुकानों के रास्ते मरकजी शाहराह से गुजरते थे। घरों में मौजूद खिड़कियां माजी के उन पन्नों में खुलती हैं जहां पर बहुत से राज दफन हैं। ये एक ऐसा शहर था जहां पर मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते थे। यहाँ पर मौजूद आसार कदीमा से ये बात मालूम होती है कि यहाँ पर जैन मत के मानने वालों का मंदिर, बुद्ध मत के लोगों का स्टूपा, सूरज देवता का मंदिर, डबल हेडेड ईगल स्टूपा और ऐसे बहुत से मुकामात मौजूद हैं। यहाँ से मिलने वाले एक महल के इलाके में मिट्टी के मुजस्मे, कांसी और लोहे की अशिया, कोजागरी के नमूने, मोती, जवाहर और इब्तदाई हुक्मरानों के सिक्के शामिल हैं। तक्षशिला में तीसरे शहर की बुनियाद 6ठी सदी ईस्वी के दौरान एक सरसब्ज वादी में रखी गई। इस खूबसूरत शहर का नाम सिरसुक के नाम पर रखा गया। इसकी बैरूनी दीवारें इसकी बुनियादों को मुस्तहकम रखने के लिए 18 फीट चौड़ी बनाई गई। सिरसुक को पत्थरों के चुनाव, मुस्ततील मनसूबाबंदी और हिफाजती दीवारों की खसूसियात के बाइस कुशन दौर से मंसूब किया जाता है। तक्षशिला मजहबी और समाजी लिहाज से अजीम विरसे का हामिल एक शहर है। इसका जिक्र हिंदू मत, जैन मत और बुद्ध मत की मजहबी किताबों में भी किया जा चुका है। इस इलाके में इंसानी तहजीब की शुरुआत का पता 3500 कबल मसीह से पहले के दौर के माइक्रोलिथिक शिकारियों से लगाया जा सकता है। स्टूपा इस खित्ते में बुद्ध मत की तामीराती कामयाबियों की जीनत की नुमाइंदगी करने के लिए आए थे और बिलाशुबा आर्टवर्क की तरह इनका मकसद भी सिर्फ और सिर्फ मजहबी ताकत के ढांचे को फरोग देना था। खुद स्तूपों को बेशुमार रिलीफ पैनल्स और फरीजों से सजाया गया था जिसमें मजहबी कहानियों और वाकयात को देखा जा सकता है जो इनके किरदार को मजीद मुस्तहकम करते हैं। तक्षशिला के इलाके में धर्माराजी का स्टूपा बुद्ध मत का सबसे बड़ा क़याम है और ये अशोका के ज़माने से ताल्लुक़ रखता है जो अजीम मौर्य शहंशाह था। इसे धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है जिस नाम से ये जगह खुद मुंसलिक है। ज़्यादातर स्कॉलर्स का पुख्ता यकीन है कि धर्माराज का उन मुकामात में से एक है जहाँ खुद बुद्धा की बाक़ियात को दफन किया गया था। ये तक्षशिला वादी का पहला स्टूपा है और बड़े सगीर का सबसे पुराना स्टूपा माना जाता है। एक और बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स मोड़ामुरादू है जो एक करीबी गांव के नाम से मंसूब है। इस इमारत में मगरिब की जानिब एक अजीमुशान स्टूपा है और मशरिक की जानिब उसातिज़ा और तलबा के रिहाइश के लिए मुस्ततील खानकाहें हैं। जहाँ की ख़ास बात यहाँ पर मौजूद 20 फुट बुलंद मोटिव यानी नजराने चढ़ाने वाला स्टूपा है। यहाँ दूसरी सदी ईस्वी में बनाए जाने वाला स्टूपा एक 16 फीट ऊंचे चबूतरे पर इस्तदा है जिसकी मशरकी समत में सीढ़ियों के लिए मुतवाज़न खाका यानी प्रोजेक्शन है। इसकी सजावट के लिए बुद्धा, महात्मा और देवता के बेहतरीन मुजस्मे इस्तेमाल किए गए हैं जहाँ बुद्ध मत के पेशवा मुराकबा करते थे। पिपला बुद्ध राहबरों की क़यामगाह का नाम पिपला के उन घने सायादार दरख्तों से माखूज है जो कभी वहाँ छांव मुहैया करते थे। ये जगह मोड़ा मोरादू और जूलिया के दरमियान पहाड़ियों के दामन में मौजूद है। कनाला स्टूपा के नाम से मुंसलिक अफसाना इसे अशोका के बेटे कनाला से जोड़ता है। टैक्सला में स्टूपा इसी लेजेंड की याद में कायम किया गया था। बुद्ध मत के ज़ायरीन जिनकी आंखों की बिनाई का मसला होता है और वो मौजज़ाना तौर पर ठीक होने की उम्मीद से इस स्टूपा पर आते हैं। टैक्सला के शहर अंगेज खंडरात में एक जगह यहाँ का अजायब घर है जहाँ पत्थर के साथ संगे मरमर और चूने की मुख्तलिफ अशिया और बुत रखे गए हैं जो गंधारा तहजीब की मुजस्मा साजी के फन का खासा था। तक्षशिला में दरियाफ्त की गई पथरीली तख्तियां और पहली से 5वीं सदी के पत्थर और चूने से बने मुजस्मे भी इस घर की जीनत है। इसके अलावा 3वीं सदी कबल मसीह से पहली सदी के सोने चांदी के जेवरात, मुख्तलिफ इकसाम के झुमके, चूड़ियाँ, पाजेबे, अंगूठियाँ और तावीज़ भी यहाँ देखे जा सकते हैं।
यहाँ हम 3वीं सदी कबल मसीह से 5वीं सदी ईस्वी तक का तहरीरी मवाद और बहुत से धाती और मिट्टी के बर्तन, औजार और जंगी हथियार भी देख सकते हैं। जूलियन स्टूपा 2री सदी ईस्वी की एक इंतहाई सजी हुई और मुकम्मल तामीर इमारत है जो सिरसुक शहर के पड़ोस में वाक़या है। तक्षशिला वादी से 300 फुट ऊपर और सिरसुक के नज़ारे में है। जूलियन नाम का मतलब मुकामी जुबान में साइट ऑफ सेंट्स है, एक ऐसा नाम जो शायद कदीम ज़माने से मौजूद है। ये इस खित्ते की बुद्ध मत की तारीख के उस वक्त की तरफ इशारा करता है जब बुद्धा की तस्वीर की सती अक्कासी अपने अरूज पर थी। इसके 2 दरबारों में मुतअद्दद चैपल और वोटी स्टूपा हैं और कभी इसमें बुद्धा के बड़े मुजस्मे भी रखे जाते थे। इसका महल्ले को खित्ते में सबसे ज़्यादा दिलकश तस्वुर किया जाता है। यहाँ पर एक हीलिंग बुद्धा मौजूद है। चाइना, जापान, तिब्बत और बहुत से इलाकों में हीलिंग बुद्धा की इबादत की जाती है, जिसके बारे में अकीदा ये रखा जाता है कि इस सुराख पर उंगली रख कर दुआ करें तो आपको किसी भी बीमारी से निजात मिल जाती है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी का शुमार दुनिया की कदीम तरीन और अजीम तरीन यूनिवर्सिटीज़ में होता है, जो बुद्ध मत की दरसगाह हुआ करती थी। ये जगह जो थी, इसका जो पीरियड था ये 1st सेंचुरी एडी से 5 सेंचुरी एडी तक था। 455 ईस्वी में सेंट्रल एशिया से कमला और कौम आई थी, वाइट हंस। उनके हाथों ये सारी तहजीब और ये यूनिवर्सिटी तबाह हो गई थी। टेक्सला एक कदीम और अजीमो दिलकश और सहर अंगेज तहजीब का एक अनमोल मोती, एक बेमिसाल सकाफती विरसा, अनोखे पत्थरों से तख्लीक की हुई दीवारें जो सदियों तक यहाँ के तहजीब व तमद्दुन की मुहाफिज रही। आज दुनिया भर के सियाहों, खसूसन बुद्ध मत के पैरोकारों के दिल इन दीवारों में धड़कते हैं। अजीम तारीख के रास्ते, कदीम तहजीब की हर गुजरगाह हमारी मुंतजिर है। खंडर में खोए खजाने तलाश करता है, वो शख्स गुजरे ज़माने तलाश करता है।